हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। ओके, चलो लास्ट टाइम हमने कुछ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन का ऐसे सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर 3 डायमेंशन एज वेल एज its motion means velocity of center of mass and acceleration due to the force. At last we will discuss about the force exerted on the system. Then consider the 3-dimensional system. मतलब just consider any type of rigid body. Now we have the better knowledge about the rigid body. Already we have discussed the rigid body means the body, otherwise the system of particles in which the interparticle distance invariant, interparticle distance does not change. This type of body it's called rigid body. Then consider any 3-dimensional rigid body, and for their position vector just choose coordinate system x and y. This is our reference point, and here there are many particles are there, means the rigid body made up of many particles. Just consider first particle of mass m1 and its position vector is r1. Just consider second particle of mass m2 and position vector is r2. Like that, suppose this one is the nth particle of mass mn and its position vector is rn. Now consider, suppose center of mass is here for this system, for this rigid body, then position vector of the center of mass is RCM. You can write capital R, otherwise small r also, doesn't matter. Then according to, we can say, definition of center of mass, according to definition of center of mass, I can say RCM is m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn upon m1 plus m2 up to mn. That already we have discussed earlier. RCM, the center of mass हमें चाहिए, then it is m1 r1 m2 r2 जितने भी particles हैं उन सभी का ऐसे प्रोडक्ट का एडिशन डिवाइडेड बाय m1 plus m2 up to mn. ये जो है m1 plus m2 up to mn, it's called its total mass. We can say here m1 plus m2 up to mn, it's capital M, it's called total mass. Total mass of system. Okay, then this equation I can write in this term. RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn upon capital M. Okay, then from the division, here it is in multiplication, then mRCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 से एज इक्वेशन नंबर 2. From equation number 1 we can come to know about the center of mass. अगर तुम्हें मास और पोजीशन वेक्टर जो भी है दे रखा है उसका तुम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। और ये जो इक्वेशन है
यहां से हम उसकी वेलोसिटी कर सकते हैं। वी नो दैट दिस वन इज r, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकंड पार्टिकल, फॉर nth पार्टिकल दिस वन इज फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, चलो अब ये जो पोजीशन है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हुई देन चेंज इन पोजीशन मींस वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें मिलती है डिफरेंशिएशन से, मतलब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तब हमें वेलोसिटी मिलेगी। ऐसा बोल सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो सेकंड का डेरिवेटिव, देखो मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होता एज इट इज, और इसका हम लिख सकते हैं d RCm/dt इज इक्वल टू टोटल मास कांस्टेंट है, मास ऑफ एनी पार्टिकल आल्सो कांस्टेंट, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मास तो सेम ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इट इज dR1/dt बाय द सेम वे m2 dR2/dt up to mn dRn/dt, but what we can say, dR1/dt is the v1, or we can say it is velocity of first particle. By the same way, what we can say about the dR2/dt, it is v2 and this is velocity of second particle. ऐसे ही अगर हम लास्ट तक देख ले then dRn/dt is vn and it is called velocity of nth particle. Okay, अब यहाँ ये जो है dRCm/dt and dRCm/dt is called velocity तो है, but VCM, and we can say it is velocity of center of mass. अब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तब यहां पर पहले यहां तक लिख दो, वीडियो पॉज करके ये राइट डाउन कर दो। ओके, चलो अब यहां से अगर मैं ये लिखूं तो ये फॉर्मूला होगा हमारे लिए VCM is equal to m1v1 plus m2v2 up to mn/vn। और अगर तुम्हें ऐसा पूछा है एग्जाम में कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको सब्जेक्ट कर दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी m1v1 plus m2v2 up to mn/vn divided by capital M, otherwise you can say m1 plus m2 up to mn। तो यहां से तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल सकता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल में भी यही करेंगे हम। अगर सेंटर ऑफ मास है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दोनों की इक्वेशन थोड़ी बहुत सेम ही है। सेंटर ऑफ मास के लिए m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू द mn/rn/M टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। वेलोसिटी के लिए VCM है देन m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn/vn अपॉन टोटल मास। ओके, चलो अब इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं नंबर 3। तो ये जो थर्ड इक्वेशन उसमें देखो m1 into v1 mass into velocity, this quantity is called momentum, then I can write mvcm is equal to p1 the momentum of first particle
this is the momentum of second particle up to the momentum of nth particle. और ये जो है momentum of first, momentum of second, then it is called capital P. We can say it is momentum of system of particles या फिर total momentum of system of particles. और ये जो इक्वेशन उसको हम बोल सकते हैं कि MVCM is equal to P. Then what we can say about the total moment of system of particles is equal to the product of total mass and center of mass. तो ऐसा लिख सकते हैं कि here the product of total mass of the system and velocity of center of mass is called total momentum of system of particles. ओके तो कई बार ऐसे एग्जाम में यहां तक क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास जो हमने अगला डिफाइन किया अगले लेक्चर में वो लिखना है तुम्हें, और फिर डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर 3 डायमेंशन सिस्टम. तो अगले में से तुम्हें सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखनी है वहां से, और फिर आज जो हमने ऐसे पूरा 3 डायमेंशन सिस्टम से आरसीएम से चालू किया तुम्हें यहां तक लिखना है कि अगर मोमेंटम पूछे कि प्रूफ P इज इक्वल टू MVCM या फिर फॉर द 3 डायमेंशन सिस्टम डिराइव द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, तो तुम्हें यहां तक उसको डिराइव करना है. ये लास्ट सेंटेंस तक तुम्हें लिखना है अगर ऐसे थियरी में पूछे तब. ओके तो तुम यहां तक ऐसे इजीली पहुंच सकते हो. चलो अब यहां से आगे करें हम. कई बार तुम्हें पूछेंगे कि फोर्स या फिर ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो फिर यहां से आगे चलना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. ओके हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? देखो मास एंड वेलोसिटी. अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करें तब हमें मिल सकता है एक्सेलरेशन. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 3 with respect to time t. इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो. तो अगले जैसे किया मास एज इट इज dVcm upon dt is equal to m1 as it is dV1 upon dt plus m2 dV2 upon dt up to mn dVn upon dt. Now what about the dV upon dt? It's called acceleration. It is the acceleration of first particle. Then we can write m1 a1 plus m2 a2 up to mn an. और ये हो जाएगा हमारे लिए m acm एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके चलो ये हुआ m1 a1. देन f is equal to ma. then m1 a1 is the force f1. it is f2 up to fn. तो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स, सेकंड के ऊपर, एंड के ऊपर. देन इट इज कॉल्ड f total force on system.
the total force on the system, and that is MACM. तो देखो ये जो भी फॉर्मूला है फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब नॉर्मल फॉर्मूला भी यही है कि F is equal to MA. I can write F is equal to MACM. तो नॉर्मल फॉर्मूला भी हमारा यही है, एंड फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द सेम फॉर्मूला वी हैव डिराइव. तो कई बार यहाँ तक डिराइव करने को पूछेंगे कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, तो यहाँ तक तुम्हें डिराइव करना है. यू टू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. देखो हमने आज का टॉपिक ऐसे सेंटर ऑफ मास से चालू किया और कहाँ तक खत्म किया हमने फोर्स की इक्वेशन जो सेम मिल रही है हमें, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मतलब जो हमने स्टार्ट किया सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला गलत नहीं है, वो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं. यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं कि मोमेंटम जो हमें लिया वो भी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कर दिया. ओके, तो यहां से भी बोल सकते हैं कि जो स्टार्ट किया वो फॉर्मूला गलत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे उसका डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला सेकंड बार डेरिवेटिव करके हमें एक्सेलरेशन तक पहुंच गए. देन F इज कॉल्ड टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम. चलो अब यहां से आगे हमें एक थोड़ा और डिटेल में करना है. तो ये जो फोर्स है, अब फोर्सेस आर टू टाइप्स, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. Whatever the motion of the particle, otherwise motion of the system of particles, it is due to the external force only. Internal से कभी उसकी मोशन नहीं होती. हाँ, सिंगल पार्टिकल है तब हम वहां पर कुछ भी उसका इंटरनल फोर्सेस का डिस्कशन नहीं करते. मतलब आगे का जितने भी हमने चैप्टर्स किए उसमें हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि फोर्सेस आर टू टाइप्स, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट ओनली द सिंगल पार्टिकल. ऐसे बोलते थे एनी टाइप ऑफ बॉडी या फिर एज ए पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, वट एवर इट इज. लेकिन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल, तो पार्टिकल तो सिंगल पार्टिकल. अब सिंगल पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि अंदर तो एक ही है वो, तो उसका कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस तो होगा ही नहीं. लेकिन फ्रॉम टुडे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एट दैट टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट द टू टाइप ऑफ फोर्सेस, क्योंकि अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल्स है वो भी ऐसे फोर्सेस एक दूसरे पर लगा सकते हैं. तब यहां से चलो पहले यहां तक तो ऐसे लिख दो, वीडियो पॉज करके फोर्स तक लिख दो. ओके, चलो अब यहां से हमें डिस्कशन करना है फोर्स का. तो ऐसा बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ force या forces. First we can say internal forces, and second external forces. अब इसको थोड़ा अलग करने के लिए कि कैसा इंटरनल फोर्स सोचे, कैसा एक्सटर्नल फोर्स सोचे. चलो तो उसके लिए कुछ ऐसे कोई भी एक रिजिड बॉडी सोचो. सपोज दिस वन इज अवर रिजिड बॉडी एंड कंसीडर दिस रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स. वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन अभी दो ही पार्टिकल सोचो, फिर बहुत सारे हैं तो भी उसका डिस्कशन हम ऐसे ही कर देंगे. देन कंसीडर रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स ओनली. देन first particle apply the force on second particle. At the same time, second particle also apply the force on first particle. Okay, तो देखो अब force on 1/2, तो वो इस डायरेक्शन में होगा. force
on 1/2 I can say F12. F12 को कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ऐसे ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट इज कॉल्ड F21. तो जो भी उसका मास है ऐसे m1 या m2, फर्स्ट का m1 सेकंड का m2, तो ड्यू टू द मास देयर इज ए इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड. तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. अदरवाइज सेकंड फोर्स जो होगा ऐसे भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक जो दूसरे पर लगाएगा उतना ही लगा सकते हैं. अब इन दोनों का जो भी फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इट इज ऑलवेज इन सेम लाइन. एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा ऐसा नहीं हो सकता. फोर्स ऑन 1/2 ऐसा नहीं होगा. फोर्स ऑन 2/1 ऐसा नहीं होगा. वो दोनों एक ही लाइन पर होंगे और वो लाइन ऑलवेज पास होगी सेंटर ऑफ मास से. मतलब व्हाटएवर द फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन ईच अदर पार्टिकल्स, the line of action of force always pass through the center of mass. Always. और ऐसे ही हमें पार्टिकल सोचने के जो ऐसे अपोजिट भी हो. एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर यहाँ. तो हर एक में जो लाइन होगी पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस है वो क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें F12 2 1 पर जितना लगाएगा ऐसे ही 1 जो है वो 2 पर उतना ही फोर्स लगेगा. फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1. सेम इन मैग्नीट्यूड. बट अगर डायरेक्शन देखें तो हमें पता चलेगा फ्रॉम फिगर इट इज ऑपोजिट. ऑपोजिट के लिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं. अब नेगेटिव मतलब वो वैल्यू नेगेटिव है ऐसा नहीं, वैल्यू तो दोनों की सेम. But here negative sign in physics indicate opposite in direction. Then force on 1/2 and force on 2/1 equal in magnitude but opposite in direction. और इसीलिए ये जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा that is 0. तो ये जो फोर्स है वो हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स. These are called internal forces. और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा. चलो उसके लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम. कि क्यों ऐसे इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्यों 0 होता है उसका एक लाइव एग्जांपल. सपोज ऐसा सोचो कि तुम लोग ऐसे कहीं पर भी ऐसे पिकनिक के लिए जा रहे हो ऐसे विद फैमिली, और ऐसे कार में तुम जा रहे हो अपनी पर्सनल कार में विद फैमिली, और कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में कहीं पर भी कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ और बंद हो गई. ओके. और रास्ते में भी कहीं ना कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि हमारी जो कार है उसको ऐसे किसी से बांध कर वो कैरी करके ले जाए. ऐसे भी कोई सिचुएशन वहां पर नहीं है. ऐसा कुछ तुम सोचो कि कार में कुछ प्रॉब्लम आया, डिफेक्ट आया और कार बिगड़ गई हमारी, और किसी ने भी ऐसे रास्ते में आते जाते पर्सन ने बता दिया कि थोड़े दूर ऐसे आइदर 1 और 2 किलोमीटर वहां पर कोई ऐसा मैकेनिक है कि जो ये ठीक कर सकता है. लेकिन अब करे क्या? ऐसे ही वहां पर जाए क्योंकि वहां तो ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं. तो क्या करें? तो अब होगा कि हम उसको ऐसे धक्का लगा के वहां तक पहुंच जाए. ओके. अब ये एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे लिए. तो बस अब धक्का लगाना है हमें. तो उसके लिए ऐसा करते हैं जितने भी लोग कार में हैं वो सब लोग कार के अंदर बैठ जाए और आराम से फिर ऐसे बैठ बैठ के धक्के लगाए. हमें तो धक्का ही लगाना है, उसको पुशअप भी करना है. हाँ, तो ऐसे ही पुश करते रहो. अंदर बैठो कार के अंदर और ऐसे जो भी जहां पर बैठा हुआ है वहां के सामने वाले सरफेस पर ऐसे पुश करो और कार धीरे 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 आगे जाएगी और वहां तक पहुंच जाएगी. है पॉसिबल? नहीं है ना. तुम लोग बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है.
अगर ऐसा होता है तो फिर कभी भी कहीं पर भी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फ्यूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? बस ऐसे कार ले आओ, अंदर बैठो और धीरे धीरे धक्का लगाते जाओ, कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ऐसा होता है पहले तो नहीं। तो जब तुम ऐसे अंदर बैठे हो कार के अंदर, तुम तुम्हारा काम तो कर रही हो, वो सब तो कर ही रहे हो, है ना, फिर भी क्यों कार आगे नहीं चलती? तो whenever you are inside of the system, you are the particle of the system, you are the particle of the car because you are inside of the car. तो you are the particle of the car. और जैसे तुम फोर्स लगाओगे तो वो सरफेस तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी। These forces are equal in magnitude, opposite in direction, resultant force 0. कुछ नहीं होगा, कार वहीं की वहीं रहेगी। अब अगर तुम्हें उसको ड्रैग करना है, पुश करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द कार, बाहर आ जाओ कार के, और फिर उसके बाद पुश करो। हाँ, तब कार जो है वो आगे जाएगी। इसका मतलब ये फोर्स तो 0 हुआ। अब एक और फोर्स सोचो यहाँ पर कि सपोज F1 फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फोर्स और F2 कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इसके ऊपर 1 और 2 पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस है, एक F1 जो एक्सटर्नल, F2 वो भी एक्सटर्नल, और ये जो दो फोर्स है वो इंटरनल। तो इंटरनल का तो रिजल्टेंट 0 हो गया। चलो अब एक्सटर्नल से वो कुछ मोशन में आएगी, क्योंकि हम जैसे ही कार के बाहर आ जाए, जितने भी पर्सन है उसमें से एक या दो भी बाहर आ जाए और वो धक्का लगाएंगे एक्सटर्नल से, तो फिर पूरी सिस्टम मूव होगी, है ना। ऑल सिस्टम इज इन मोशन, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास आल्सो इन मोशन। देन जब कभी भी ऐसे पूरी सिस्टम मोशन में है, सेंटर ऑफ मास इज आल्सो मोशन ड्यू टू द फोर्स, देन ऑल फोर्सेस आर एज्यूम्ड टू बी अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जितने भी फोर्सेस है ना वो सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहे हैं, क्योंकि पूरा जो पार्टिकल है, पूरा जो सिस्टम है वो एक साथ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी की स्पीड से, उसी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी फोर्सेस कहां पे लग रहे हैं? ऑन सेंटर ऑफ मास। तो चलो उसके डायग्राम के लिए ये सेंटर ऑफ मास बोल देता हूं, हमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। देखो F12 कौन सी डायरेक्शन में? ऐसा है, तो ये वाला ऐसा, दिस इज कॉल्ड F12। F21 ऐसा कुछ, then it is called F21। F21 इस डायरेक्शन में, F12 डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना। F1 कुछ ऐसा है, then it is F1, और ये F2, ये तो 0। इंटरनल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट 0। तब ये जो भी सिस्टम है या सेंटर ऑफ मास है वो उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, और वो हमने पढ़ रखा है। वैसे ये कुछ हो गया पैरेललोग्राम जैसा, तो यहाँ और यहाँ, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन, मतलब पूरा जो सिस्टम है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है उसका हम थोड़ा और अलग तरीके से सोचे तो ये डायग्राम से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इन दिस डायरेक्शन, पूरी सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। Therefore, due to the external force, object comes in motion। और जो हमने लिखा हुआ है कि F is equal to M ACM, and this is the external force। तो जो भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्स है उसी के रिजल्टेंट से वो मूव करेगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ओनली, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट ऑलवेज 0। चलो अब उसी के लिए मैं एक एग्जांपल दूसरा दे दूं।
कि ये कोई भी हमारी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई, और हम चलो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हमने कोई भी एक बॉम्ब है उसको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करा दी, मतलब ऐसे फेंक दिया हमने, तो उसकी मोशन कुछ ऐसे होगी। पूरी मोशन तो अभी करेंगे, लेकिन यहाँ से ऐसे। चलो ये बॉम्ब जो है वो यहाँ पर आकर ब्लास्ट हो रहा है, मतलब उसके जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं वो कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। ओके, ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। बॉम्ब जो कौन सा बॉम्ब है, केमिकल बॉम्ब है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है कि हमारा ऐसे क्रैकर्स वाला बॉम्ब है, व्हाटएवर इट इज, ड्यू टू द चेंज इन इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फोर्सेस से वो ब्लास्ट हुआ। ओके, अब इंटरनल फोर्सेस से ब्लास्ट हुआ, द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास है उसमें हमने बोल रखा है कि जो भी इफेक्ट होती है दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स यहां पर कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉम्ब मूव्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ये जो है वो उसका पैराबोलिक पाथ जो है वो कंप्लीट करेगा। चलो ऐसा सोचो कि बॉम्ब जो है वो अगर ब्लास्ट नहीं हुआ, अगर ब्लास्ट नहीं होता तो जैसे ये प्रोजेक्ट किया है हमने वो उसकी ऐसे पैराबोलिक पाथ कंप्लीट करता, बिकॉज पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। ओके, अगर ब्लास्ट नहीं होता तो डायरेक्ट ये बॉम्ब है वो इधर ही आ जाता, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी की लाइन पे। ओके, जिसको मैं ऐसे यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। अब इसमें सडनली कहीं पर भी ब्लास्ट हुआ तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट द सेंटर ऑफ मास मूव्स ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी में तो ये उसका जो है पाथ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी भी पाथ यही रहेगा, सेंटर ऑफ मास फॉलो इट्स सेम पाथ। क्यों? तो ये जो फ्रेगमेंट्स है वो कुछ ऐसे मोशन करेगा, ये आगे जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसे, उन सभी का ऑल ओवर तो सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो ये इसी लाइन में तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है कि इंटरनल फोर्सेस जो है उसका तो रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो, मतलब जो ब्लास्ट हुआ तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स तो गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव्स ओनली अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। ये तो एक्सटर्नल फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स से ही मूव करेगा तो वो उसका पैराबोलिक पाथ कंप्लीट करेगा। ओके, तो यहां से भी हमें उसका रेफरेंस मिल सकता है कि मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ओनली एंड ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो। ओके,